Hello! Welcome to a Q&A session. For those of you who don't know, मैंने अपने Instagram पे स्टोरी डाली थी and YouTube पे एक पोस्ट डाली थी to let everyone ask all the questions they have regarding college क्योंकि I've been meeting a lot of freshers in my college ever since I came back and they all have a lot of questions regarding college. उनको तो मतलब स्पेसिफिकली मेरे कॉलेज से ही होते हैं questions but आज in general I asked for college questions and there were a lot. So without any ado, let's get into it. The first question is how to serve in college as a hosteler, which I'm assuming is how to survive in college as a hosteler. And as a certified hosteler for the past 3 years and counting for another year, I can say you will just learn it over time. Common washroom से कैसे deal करना है, if you have roommates उनसे boundaries set करनी है, what is your sleep schedule when no one is telling you to go to bed, phone रख के, when do you wake up, how much healthy do you eat, how much unhealthy do you eat. You actually figure out yourself and your life ke patterns once you start living in a hostel. And yeah, it's a journey. So how to survive is just figuring out what works best for yourself and just not going insane. If you are traveling to and fro from your college to home or any other place in a cab, don't ever sleep in a cab. जब मैं अपने vlogs में बोलती हूँ कि मैं cab में सोती हुई I have other people, friends who are traveling with me, तब बारी बारी लगा के सब सो सकते हो, एक साथ मत सो. क्राइम पेट्रोल सबने देखा है, मैंने तो देखा ही है. इफ नहीं देखा 3-4 एपिसोड देखो क्राइम पेट्रोल के. अकेले जाते हुए तो कभी नींद ही नहीं आएगी, सोच भी नहीं पाओगे. इफ यू आर ट्रैवलिंग विद ट्रस्टेबल फ्रेंड्स देन डाइन देके एक दूसरे को सो सकते हो. डाइन देन जो भी होता है. हाउ डू यू मैनेज कॉन्टेंट क्रिएशन इन कॉलेज? मेरे पास इसके लिए एक ही एडवाइस है. इज द वे यू डू वन थिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग. जस्ट मीन्स के इफ यू आर फोकस्ड एंड डिटर्मिन्ड टू मेक समथिंग वर्क देन ऑटोमेटिकली बाकी सारी चीजें विल फॉल इन टू प्लेस. अगर कोई इंसान जिमिंग को लेके बहुत ज्यादा फोकस्ड है तो उसको अपने जिमिंग के लिए तो टाइम बनाना ही है, तो उसको इसी के अकॉर्डिंग अपना पूरा दिन प्लान करना पड़ता है कि ये भी काम है, ये भी काम है, ये भी काम है, ये भी काम है, तो सब एक स्पेसिफिक टाइम पे कंप्लीट हो जाए तभी वो जिम पे जा सकता है. तो दैट इज द केस विद मी. इफ देयर समथिंग दैट यू वांट टू डू, यू नो कि तुम्हें वो तो करना ही है, बट अगर उसके अलावा और भी चीजें हैं तुम्हारी लाइफ में जो ऑब्वियसली होती ही हैं सबकी, उस मेन चीज को टाइम देने के लिए यू विल मेक टाइम फॉर थिंग्स. तो या विद टाइम समझ आता है ये, बट time management is key. Is joining society is worth it for day scholars? In my very personal and professional opinion, I don't think joining societies is worth it. मैंने खुद जो सोसाइटीज़ ज्वाइन करी थी बस इसीलिए करी थी कि पीपल टोल्ड मी कि बहुत मुश्किल सोसाइटीज़ हैं एंड यू वोंट बी एबल टू गेट इनटू इट, तो जस्ट फॉर द थ्रिल ऑफ इट. उसके अलावा आई नेवर वेंट इन. तो मे बी यू थिंक कि आई एम नॉट अ क्वालिफाइड पर्सन, बट आई हैव हैड पीपल अराउंड मी जो इतने कंपेटिटिव पोजिशंस पे जाके पहुँच के भी they don't think कुछ हो रहा है. Like if you wanna try it for socializing and you think कि तुम्हारे without a group formed forcefully friends नहीं बन सकते and circle नहीं बन सकता, then go for it. It's a great way to expand your circle. But उसके अलावा I don't think किसी के लिए भी worth it है अगर if it's taking up too much of your time in designing Canva posters and recruiting people to sign up. Do you regret not cracking JEE Advance? I'm in 12th and very confused. It's been 3 years, more than 3 years since I didn't crack JEE Advance. But I don't regret it anymore. I maybe regretted it for a year. I did. But उसके बाद things started falling into place. I felt like doing something I was meant for. And कि मतलब इतना कोई आफत नहीं है जितनी 12th में लगती है 12th निकलते ही. You are confused, I get it, I was in that stage. But there is light at the end of the tunnel, which I always say. Don't be confused. Just pick a path that you think would be the best for you, and it will be. Everything happens for a reason. How to make friends in college? I went to college for like 3 to 4 days, but not able to talk to anyone. If you feel like this, I can assure you कि तुम्हारे सामने जितने भी लोग हैं उसमें से आधे से ज़्यादा लोग would be feeling the same. The key to making friends as a fresher is just confidence. If you go up to people and introduce yourself and talk to them about something, they will revert back because everyone comes to college thinking about wanting to make friends. You are not alone. They won't judge you. They won't think of you as a creep because they are wanting to do the same thing, but they are just not able to. हर किसी को ये सोचो कि they are interested in being your friend and just go up to them is
the only advice that is going to work. Just talk to people. I know it sounds like मैं बहुत ही out of touch हूँ और ये बहुत मुश्किल है, but you just have to trust me on this कि you might be feeling like groups have been formed and you are an outcast and no one wants to talk to you and no one wants to be your friend and you can't make friends anymore, but that is not the case. I can 1000% assure you 3-4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, महीना, एक semester, it's nothing. Just talk to people. Try. बहुत hard है मेरे लिए भी. Everyone who meets me in person, half of the people I meet in person who have seen me online are like, you are so quiet in person. क्योंकि मैं भी at a first glance लोगों से इतना बात नहीं कर पाती. But जो मैंने fake करा है अपने college first year में, I wanted to make friends and I knew सेम एडवाइस जो मैंने तुम्हें दी, क्योंकि मैं भी ऐसी कॉलेज एडवाइस वाली वीडियो बड़ी सारी देख के आई थी तो मेरे को पता था, तो वो एडवाइस मेरी काम कर गई. मेरी बहुत ही ट्राइड एंड ट्रस्टेड हैक है. जस्ट ट्राई इट फॉर वंस एंड लेट मी नो कि कोई रिजल्ट आता है कि नहीं. आएगा, पक्का आएगा. हाउ टू एक्चुअली एंजॉय द फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज एंड मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट. डी स्टूडेंट, स्टे सेफ. पीपल शिट सो मच ऑन मी कि मैं अपने ही शहर को ऐसा क्यों बोलती हूँ कि स्टे सेफ, बट वी ऑल नो द ट्रूथ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टे सेफ. एंड बहुत जगह है दिल्ली में तो घूमने की, घूमो फिरो, मेक फ्रेंड्स. यू डोंट हैव टू बी अ लोनर टू बी ऑन द टॉप फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर. You can hang out with people, make friends, have a social life and still work towards your goals, and be it getting an internship, getting into your family's business, traveling, whatever it is. That is my best advice. घूमो फिरो, stay safe. First year में कुछ ज़्यादा पढ़ाई तो होती नहीं है. At least that was the case for BTech. I don't know what's the case for your course, but study well, stay safe, have fun. मेरी एडवाइसेस सुन के you might be thinking कि ये इतनी जेनेरिक एडवाइस क्यों दे रही है, इसके पास कुछ बताने को नहीं है क्या? But after being a college student for 3 years, I can tell you, I can assure you कि it is not that deep. You might think the person next to you has everything figured out, but it's not the case. You just need to put yourself more out there and that is the key to life. Every single thing. मैं out of touch या delusional नहीं हूँ. Should you date in college? If yes, when? Why is your first thought coming into college is when to get in a relationship? इतनी क्रेजियर चीजें हो सकती हैं कॉलेज में. मेक फ्रेंड्स, गो ऑन अ ट्रिप, नाइट आउट, जंक खाना, कुछ भी तुम्हें बेटर लग सकता है इससे. बट प्लीज डोंट मत करो ये सब. फर्स्ट ईयर में तो कम से कम दुनिया तो देखो पहले, प्लीज. मेरे अभी भी आई रिमेम्बर, 1-2 दिन पहले रात को मैं कुछ खाना खा रही थी एंड मेरे को मेरी मेस में 2-3 ऐसी लड़कियां मिली एंड उनको भी मैंने यही एडवाइस दी आफ्टर एवरीथिंग, पूरी उनसे बात करके फ्रेशर्स को, कि प्लीज एटलीस्ट फर्स्ट ईयर में डोंट डेट एनीवन. प्लीज एक, अगर आप मेरा कंटेंट देखते हो, मेरी बात मानना चाहते हो, मेरे से सलाह चाहते हो, तो एक तो मेरी बात मान लो. देयर इज नो नीड. How do I know who is my real friend and who isn't? If you are in first year, which I'm assuming you are because you asked a question on ये freshers Q&A वाली story, then nobody is your real friend. एक साल रुक के देखो, तुम्हारे bunch of friends में से कोई एक आधा friend बन जाए, तो फिर you can get to this point कि who is my real friend and who isn't. अभी कोई नहीं है. Please मत expect करो to find a real friend. अगर वो real friend होगा तो वो they will last and you will figure it out eventually. But don't look for a real friend in your first year of college. Look for fun, ambitious, fun friends. बस. You are the average of your company. Hang out with people that you somewhat have some inspiration to कि मेरे को कुछ तो इसका चाहिए कि जो इसके पास better चीज़ है, and have fun. क्योंकि I remember when I was in my first year, the people that I hung out with, the only 2 things that we used to do was eat and bitch about people, and that was not something that was really uplifting. After a point you feel like ये क्या कर रही हूँ मैं अपने जीवन के साथ, मतलब कुछ और भी तो crazier होगा college experience में. तो if you think कि there is a repetitive pattern of doing something negative, कि ये सब करना, कि बस खा रहे हो, सो रहे हो और लोगों के बारे में बकवास कर रहे हो. I'm not saying कि athletic friends बनाओ, जिम जाओ, ये करो वो करो, but positive, outgoing, fun, बस बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है मेरी. तो बस उतना ही मैं एडवाइस दे रही हूँ कि इतना बेयर मिनिमम तो फुलफिल हो, उसके बाद तो एवरीवन हैव देयर ओन स्टैंडर्ड्स. इंट्रोडक्शन में क्या बोलूँ, थैंकफुली मेरा भी ऐसा ही हाल था मेरे फर्स्ट ईयर में. मतलब वो थैंकफुली नहीं, बट थैंकफुली मेरे पास किसी ने एक भरे ऑडिटोरियम में माइक नहीं भेजा कि मेरे को ये सब के लिए पसीने आते रहें. बट इफ दैट हैपन्स टू यू, हाई, आई एम नायसा, आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड बस, मतलब
मेरे को नहीं पता, मैं सोचती हूँ रुको। मतलब इफ यू थिंक ऑफ एक तुम्हारे बारे में फन फैक्ट तो तुम वो बता सकते हो। अब मेरे बारे में फन फैक्ट क्या है, बहुत ही अजीबो गरीब फन फैक्ट है कि मेरे पास इतने सारे सॉफ्ट टॉयज हैं, पिंक कलर पसंद है मेरे को। ये तो भरे ऑडिटोरियम में बताने के लिए अच्छे फन फैक्ट्स नहीं है, तो मैंने तो आज तक बताए नहीं फन फैक्ट्स की। जैसे लोग होते हैं ना जिनके इंट्रोडक्शन पे कुछ एक फनी सी पंच लाइन मारते हैं वो, एंड एवरीवन इज लाफिंग एंड तुम्हें इतना कॉम्प्लेक्स होता है उससे। वो मैं नहीं थी, मेरे को होता था कॉम्प्लेक्स, तो मैं तो बस ऐसे स्ट्रेट अप नेम, एज, लोकेशन, ब्रांच अगर इतना इफ यू आर थिंकिंग कि क्या बोले तो गो विद अ सेफर ऑप्शन, एंड विद टाइम यू विल फाइंड पीपल यू कनेक्ट विद, और उनके सामने खुद को इंट्रोड्यूस करो कि ये मेरे को पसंद है, मेरे सॉफ्ट टॉयज हैं, मेरे को पिंक कलर पसंद है, ये वो रिंग लाइट पे लगा के फ़ोन रिकॉर्ड करती हूँ। एनीथिंग। व्हाट टू डू इफ़ यू गेट एन अनोइंग रूममेट हु लाइक्स ब्रेन रॉट स्टफ। यार ब्रेन रॉट तो अच्छा होता है, बट अगर तुम्हें नहीं पसंद अपना रूममेट फॉर एनी रीज़न, इफ़ यू आर अनलकी कि तुम्हें अपना रूममेट नहीं पसंद, तो इट इज़ वेरी कॉमन। जस्ट सेट क्लियर बाउंड्रीज कि बस तुम्हारे कलेश ना हो कि तुम्हें उसके साथ रहना तो पड़ेगा ही until you can change your roommate or room whatever. तो just set clear boundaries and don't try to be friends with your roommates if you are not. इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम्हें अपने रूममेट से बेस्ट फ्रेंडशिप करके ही रहनी है। यू कैन जस्ट बी कॉर्डियल, क्योंकि वो तो एक आइडियल सिनेरियो हो जाएगा। बट अगर तुम इस माइंड फक सिनेरियो में हो तो जस्ट बी कॉर्डियल विद योर रूममेट, हैव सेट बाउंड्रीज एंड लाइफ विल बी मच स्मूदर एंड यू विल नॉट dread coming into your room. I have been on both sides and I can say this from personal experience. I had a roommate जिसके साथ I was really good friends with. We lived like sisters, sharing सारा सामान, very nice friendly relationship. And I had a roommate जिसके साथ मतलब I wouldn't say she was annoying. मतलब ideal stranger roommate किसी को मिल सकता है तो वो थी. I was very lucky in that scenario कि we had set boundaries. हम एक दूसरे के सोने पे लाइट बंद कर देते थे. मतलब मेरे रूम में मेरे फ्रेंड आता था, कोई उसकी फ्रेंड आती थी, तो कोई सब हम चैन से बीत गए थे. तो वो एक मैं बता सकती हूँ कि हैविंग बाउंड्रीज विद योर रूममेट, अगर आप फ्रेंड्स नहीं बन पा रहे हो तो जस्ट को एग्जिस्टिंग एज रूममेट्स कैन ऑल्सो वर्क आउट. आई हैव हर्ड स्टोरीज ऑफ पीपल फाइटिंग विद देयर रूममेट्स एंड इट डिड नॉट एंड वेल. तो दैट इज समथिंग दैट आई डोंट रिकमेंड. अगर उसका ब्रेन रॉट नहीं पसंद तो उसको ये बोल दो कि चलो आई डोंट यूज इंस्टाग्राम मच या कुछ भी ऐसे बहानेबाजी, बट लड़ाई करके कुछ नहीं मिलेगा. रूममेट से कमरे में आना ही पड़ेगा and you don't want to dread your own room. How to make friends as an introvert? Again, your potential friends don't know that you're an introvert. So just fake it till you make it. Not to quote Maddie from Euphoria, but more than half of life is about just faking your confidence. And you'll realize it's so much true once you start doing it. Also, मैंने ना एक रील देखी अभी, मतलब अब मैं झूठ नहीं बोलती कि I read it somewhere. I read it on a newsletter. मैंने न्यूज में देखा. I read somewhere. I read an article. अब वी कैन बी ट्रू टू आवर सेल्फ, वी आर पास्ट द फॉर्मेलिटी वाला पॉइंट. तो मैंने एक रील देखी, उसमें वो लड़की बताती कि वो वैसे इंट्रोवर्ट थी एंड शी वांटेड टू मेक फ्रेंड्स. एंड उसने क्या करा, शी मेड एन ऑल्टर ईगो इन हर माइंड कि जैसे आई एम नायसा, बट मेरे को स्टेज पे जाके 500 लोगों से बात, तो दिस इज समथिंग जो मैंने आज तक करा ही नहीं है. तो इट्स लाइक री इन्वेंटिंग माई सेल्फ. तो मैं क्या करूंगी, तो उस लड़की की एडवाइस के अकॉर्डिंग आई वुड मेक एन ऑल्टर ईगो कि मेरा नाम अभी तो नायसा है एंड मेरी एक सर्टन मैनरिज्म्स है, बट जो स्टेज पे जाके लोगों से गॉसिप, गपशप, बातचीत करेगी, शी वुड बी कॉल्ड माया. माया इज सच एन आउटगोइंग सोशल पर्सन कि वो बस कुछ भी कर सकती है. एवरीथिंग दैट आई वुड फियर ऑफ डूइंग, माया कैन अचीव दैट. एंड हु इज माया? एन एक्सटेंशन ऑफ माई माइंड, ऑफ एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ माई करेंट सेल्फ. तो मतलब वो मेरे से ज़्यादा दूर नहीं है माया. तो मे बी यू कैन ट्राई दैट. आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट ट्राइंग दैट. मेरे को ऐसा मौका मिले एंड आई रीइन्वेंट माई सेल्फ, सो यू नो दैट्स नॉट मी, दैट्स माया. हैव फन, मेक फ्रेंड्स, स्टडी, ट्राई न्यू थिंग्स, गो आउट, हैव फन. जेनेरिक एडवाइसेस नहीं है ये, आई प्रॉमिस. अगर मैं अपने फर्स्ट ईयर को लुक बैक करूँ तो दीज आर द ओनली थिंग्स जो मैं लैक कर रही थी एंड द थिंग्स दैट आई कुड हैव इम्प्रूव्ड. सो डू दैट. इट्स लाइक जब तुम कोई एग्जाम से निकलते हो, अब मैं एग्जाम्पल देके समझाऊं, तो यू रियलाइज कि ये तो आसान था, मतलब कुछ ऐसे एक्सेप्शंस को छोड़ के कि मुश्किल एग्जाम है, कि तो आसान था, ये पढ़ लेती तो हो ही जाता, ये कर लेती तो हो ही जाता. तो मतलब वो चीज़ होने के बाद पता चलता है ना कि इट वॉज नॉट दैट बिग ऑफ अ डील. तो मेरा भी फर्स्ट ईयर हो गया है, तो आई एम रियलाइजिंग कि इट वॉज नॉट दैट बिग ऑफ अ डील. अगर मैं ये थोड़ा सा कुछ कर लेती जेनेरिक सा, तो इट कुड हैव बीन सो मच मोर बेटर. तो बस दैट्स द बेस्ट टिप. बीटेक कर रहे हो, यस, ये सब ज्ञान देने की मेरी क्वालिफिकेशन इसी से आई है. आई एम currently in my 4th and final year of engineering. It's been
2 weeks since it started, तो यही है मेरी क्वालिफिकेशन से सारा ज्ञान देने के लिए. I am a reliable source. How to convince your parents for late night outings or parties. I don't want to be a bad influence. Disclaimer दे दूं मैं इसके पहले कोई कहे, बट कन्विंस करने के लिए आपके पेरेंट्स में होप होनी चाहिए. अगर आपको लगता है आपके पेरेंट्स में होप है कि वो कन्विंस हो सकते हैं, तो करो उन्हें कन्विंस. टेल देम रीजनिंग, प्रोस, कॉन्स. बट अगर तुम्हें लगता है कि होप ही नहीं है, ये लोग मान ही नहीं सकते, कोई फायदा ही नहीं है, तो या तो एक ऑप्शन हो सकता है, जस्ट वेट अंटिल मान जाए ताकि कोई तगड़ा कलेश ना हो, या जस्ट स्नीक आउट. बस दैट इज ऑल माई जो भी है. बट इधर वे स्टे सेफ. ओरिएंटेशन डे पे कनेक्ट करे लोगों से या नहीं, करो. एवरी सिंगल मौका जो तुम्हें मिलता है लोगों से कनेक्ट करने का, करो करो करो. इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि तुम उनसे एक हफ्ते बाद बात करो या ना करो. दे कैन जस्ट बी योर ट्रांजिशन फ्रेंड्स फॉर यू टू फाइंड योर एक्चुअल फ्रेंड्स देन योर रियल फ्रेंड्स. बट करो, जिन लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, जितने लोगों से कर सकते हो करो. स्नेक्स से कैसे बचें? ऑल आई कैन से इज दैट इट्स अ राइट ऑफ पैसेज. ये आपकी डेस्टिनी है, ये कैनन इवेंट है, ये होना ही है, हर किसी के साथ होता है. ऑल आई कैन से इज कि एक बार तो सबका ही कटता है, दूसरी बार जो करवाए वो गधा, तो दूसरी बार नहीं करवाना. स्नेक से दूसरी बार बच जाना. पहली बार तो इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू एस्केप. दूसरी बार इट इज, तो ट्राई दैट. लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस. Do you feel scared कहीं पे रहने पे? The first night that I stayed in my hostel, first year की पहली नाइट जो मैं रही थी, बस उस टाइम मेरे को डर लगा था एक बारी, बड़ा मैंने रोना धोना करा था. बट उसके अलावा अगले दिन से इट वॉज एब्सोल्युटली नॉर्मल, ऑल रेनबोज एंड सनशाइन्स. एक बारी तो मतलब डर लगता ही है. मैं आई वॉज समवन हु हैड नेवर लिव्ड अवे फ्रॉम माई होम. कभी एक आधा दिन किसी फ्रेंड के साथ स्लीप ओवर या कहीं और रह के, बस. उसके अलावा नॉट इवन लाइक अ मल्टीपल डे ट्रिप मैं कभी नहीं रही थी घर से दूर. तो एक ही रात मेरा सैड गर्ल एरा चला था. उसके बाद कुछ इतना डर नहीं है. मैं अभी भी मतलब डर तो क्या नहीं, अभी भी मैं पिंक कलर की ऐसे सनसेट लैम्प चला के सोती हूँ. तो मतलब अकेले सोने में तो डर लगना इंसान का अपना अपना पर्सनल जजमेंट है. किसी को लगता है, किसी को नहीं लगता. तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दैट देन लाइटें वाइटें चला सकते हो. बट उसके अलावा कैंटीन का खाना कैसा है? आई एम अज्यूमिंग यू आर आस्किंग मेस का खाना कैसा है. डोंट हैव हाई होप्स. आई रिमेंबर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैं सिर्फ ऐसे पैकेज्ड आइटम्स खाती थी अगर मैं वैसा खाना खाती थी, तो कि दही कोई खराब नहीं कर सकता, सैलेड कोई खराब नहीं कर सकता, तो ऐसे जो ऐसे पैक डेजर्ट्स जो ऐसे होते हैं वो कोई नहीं खराब कर सकता. तो यू विल ट्रांजिशन, मतलब कुछ कुछ खाना ट्राई करके, हो सकता है नहीं भी हो सकता है. मैं तो किसी को मैं इसके खाने पे ज्ञान दे ही नहीं सकती, मैं तो अच्छा नहीं होता. व्हेन डू यू स्टडी? एग्जाम से एक दिन पहले, एक रात पहले भी कर सकते हैं अगर सब्जेक्ट थोड़ा सा आता है, वरना एक दिन पहले इज व्हाट आई पर्सनली डू. आई डू नॉट recommend, but if you had to describe each year with giving a tag to every year as a feeling, crazy, creative and innovative question. First year would be confusion, trying something new, fun. Second year would be feeling old. जितना मेरे को सेकेंड ईयर में बुढ़ा फील हो रहा था फ्रेशर्स को देख के कि ऐसे लगता है कि पता नहीं, तो वो तो बस पूरा ऐसे ही लगता रहा मेरे को पूरा सेकेंड ईयर. तो थर्ड ईयर वुड बी हैविंग फन, वेरी नाइस, फाइन, एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग what you want to do, how you want to do, studying, everything is getting clogged कि क्या और कैसे करना है. फोर्थ ईयर का भी पता चलेगा. अगर कोई कुंभकर्ण की तरह सोता हो और सिर्फ मम्मी की मार से उठे तो वो क्यूलेस में क्या करे? अलार्म लगाए, उसको खुद ही उठ जाएगा. यार मैं भी नहीं उठती थी कभी. मेरी मम्मी अभी तक, मम्मी ने आज मेरे को कॉल करा, मैंने उनको बताया संडे के दिन मैं 8:30 बजे की जगी हुई हूँ मदर. मैंने कहती मैंने तेरे को कभी नहीं देखा 8:30 बजे जगे हुए. 1 बजे तक तो सोती है घर पे, 2 बजे तक ब्रेकफास्ट करती है. तो मतलब यू जस्ट स्टार्ट. मैं अभी भी अगर एक हफ्ते पहले तक अपने घर में रह रही थी तो मेरे को मार मार के ही उठाया जा रहा था कि उठो उठो उठो, दोपहर हो गई है, कुछ खाओ, उठो. एंड अब आई जस्ट वेक अप ऑन माई ओन. कि वो फर्क पड़ जाता है. इफ यू, ये क्वेश्चन मन में तभी आता इफ यू हैवंट लिव्ड अलोन फार फ्रॉम योर होम, जो कि मेरे को भी आया था कि मैं उठूंगी कैसे, मैं उठूंगी कैसे. बट इट इज द ईजीएस्ट थिंग टू फिगर आउट. इज कॉलेज लाइफ बेटर देन स्कूल लाइफ? यस, एब्सोल्युटली यस. More freedom, more fun, more
will to try new things, more exposure, everything is so much better. Very less study load. मतलब ये तो ना पढ़ने वाले लोगों का हो गया थोड़ा सा कि pro, but yeah, very much better. But you just have to make sure कि better हो कि if you just get up the moment your class ends and go back to your home or your hostel room, तो फिर वो नहीं लगेगी better. फिर you will just feel like स्कूल ही बढ़िया था, इसमें कम से कम टीचर से पीटी पीरियड लगा के forced connections तो बनवा देते थे. यहाँ पे ऐसे कुछ भी forced नहीं है. Nothing you do will be forced, hopefully. But stay away from someone who forces you into anything. College life is better. मेरी कॉलेज इसकी रोल के बैंगन में समोसे में आलू, ऑल आई कैन से इज साइकिल से पेड़, घर का दरवाजा और दिल्ली में ठंड. ये भी थोड़ा सेंस मेक कर गया, मेरे को लग रहा है. मैं इफ यू आर नॉट क्रॉनिकली ऑनलाइन लाइक वी बोथ आर, ये कैसा ट्रेंड है इसमें सब कुछ भी बोलते हैं and it does not have to make sense. Drop the most unsensible line you can try to make. जिसे इन्होंने बनाने की कोशिश करी है, मैंने failed attempt करा है. Drop the most insensible line that you can ever think of. And I'll pin the best one. How to learn how to stay away from home. Homesick हो रहा है. ये homesickness तो आती जाती रहती है, but initially तो होती ही है सबको. Even you would feel like you are being homesick, but your family members would also be homesick for you. सबको अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो वो तो बहुत ही क्रेजी होता है कि सबको ही लग रहा होता है माय जिगर का टुकड़ा मेरा घर, माय जिगर का टुकड़ा मेरा बच्चा. बट विद टाइम इट गोज अवे. मतलब नॉट कम्प्लीटली, बट इट टोन्स डाउन अ लॉट. क्योंकि मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली एक्साइटेड होती है मेरे आने पे. बट जब मैं पहली बार कर गई थी तो बिल्कुल आंसू नहीं किसी के टप टप होते. इतना किसी को फर्क नहीं पड़ता मुझसे. हाउ टू आइडेंटिफाई कौन सांप है और कौन सगा, कॉज आई यैप टू मच. फिर आपको पता चल ही जाएगा अगर आपकी यैपिंग नहीं रुक रही है फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, तो आपको बहुत जल्दी ही पता चलेगा कि कौन सांप है. आपको तो चल ही जाएगा पता, और किसी को चले ना चले. अपनी यैपिंग कंट्रोल में रखो. फर्स्ट ईयर में हो तो समय आएगा यैपर बनने का. बैक ना आए और पढ़ाई और सोशल लाइफ कैसे मैनेज करें. एक रात पहले भी पढ़ लोगे तो नहीं आएगी बैक. बस एक रात पहले फोकस से पढ़ लो. सोशल लाइफ के लिए तो बाकी पूरा सेमेस्टर ही है. आई फर्मली बिलीव कि मेरी 4 साल की इंजीनियरिंग की डिग्री 1 साल में बहुत ही ईजिली कंप्लीट हो सकती है, क्योंकि मैं इतना ही पढ़ती हूँ. 1 साल में मैं एग्जैजरेट कर रही हूँ क्योंकि इतना ही पढ़ना होता है. मतलब ते होंगे लोग बहुत ज्यादा, बट फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस ही मैं तुम्हें ऑनेस्ट एंड रॉ एडवाइस दे सकती हूँ. तो या हो जाएगा मैनेज. बैक ना आना, अच्छा ग्रेड आने की, सब सब्जेक्ट्स में ए ग्रेड लाने की एडवाइस मैं नहीं दे सकती. बैक ना आने की एडवाइस मैं दे सकती हूँ. तो इतना काफी है बैक ना आने के लिए. वो भी होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, ये सब होता है, क्विज होते हैं, उन पर ही फोकस करो. अगर तुम्हें बैक ना आने का ही डर है तो तुम्हारी सोशल लाइफ और बैक ना आना बहुत ईजिली मैनेजेबल है. Scared and anxious about the first day of college. Also didn't get my dream college. From the college that I am in, यहाँ पे भी आके मेरे को a group of people मिले जिनका ये ड्रीम कॉलेज नहीं था. एंड बट अब एवरीवन इज थ्राइविंग. तो इट्स नॉट एन इशू कि तुम्हारा ड्रीम कॉलेज नहीं था. इट्स अबाउट हाउ यू मेक डू ऑफ द अपॉर्चुनिटीज दैट यू हैव करेंटली एंड नॉट थिंक ऑफ व्हाट लाइफ कुड हैव बिन. क्योंकि वो नहीं हुआ तो किसी रीजन से ही नहीं हुआ. ज्ञान देना इतना लग रहा है ना मेरे को ये. बट सीरियसली स्केर्ड और एंग्शियस लगना बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है. इट्स गुड कि स्केर्ड और एंग्शियस लग रहा है, बट you need to learn how to overcome it. If you're not able to do it, fake it. Faking your confidence is the easiest way of learning how to be confident. Thought for food for thought. What do you do when you don't feel a sense of belonging and you don't really relate to anyone? This is the exact description of crashing out. I take मेरा Nutella का डब्बा and I go to bed, I watch a movie and I eat आधा किलो Nutella, which is not healthy. This is the only way that helps me to dissociate. And फिर थोड़ा सा मेरे को जब मेरा रोना मुकता है तो मेरे को थोड़ा सा सेंस आता है and I can finally think clearly again. This is what I like to call as post crash out clarity. Yeah, Rolo. Crying is good for your health. For the longest time I felt like रोना नहीं चाहिए and ना रोने में ही मैं इतनी प्राइड खाती रहती थी. But it's not good for your health. Crash out. कॉलेज के फर्स्ट वीक में ही फ्रेंड से लड़ाई हो गई because she was toxic. तो अच्छी बात है ना, she can spend her whole next 4 years or possibly her whole leftover life telling people कि हाँ उसको कॉलेज के फर्स्ट वीक में एक लड़की मिली थी जो उसने फर्स्ट वीक में ही जिससे कलेश कर लिया. And you will forget about her in the next week because you will make more friends who are not toxic and you won't be miserable talking about someone जिसने तुमसे लड़ाई कर ली क्योंकि तुम्हारी अपनी हरकतें थी.
इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। उसके लिए पूरा कॉलेज का नैरेटिव यही था कि एक लड़की मिली थी, उससे कलेश हो गया, एंड फॉर यू इट्स अ लेसन। इतना पॉजिटिव माइंडसेट मेरा जो हो रहा है ना, मैं अभी जाके मेरा क्रैश आउट आने वाला है, मेरे को ऐसा लग रहा है। शुड आई लॉक इन एंड डीएक्टिवेट 5 months लेफ्ट फॉर जेई? यस। जितने भी, अगर तुम्हारे पास 15 दिन बचे हैं अपने टारगेट एग्जाम या टारगेट वट एवर गोल को रीच करने के लिए, तो लॉक द फक इन, लॉक द फक इन, लॉक द फक इन इज द ओनली एडवाइस आई कैन गिव यू. There is nothing as come time left. There is only time utilized and time wasted. तो you can think कि 5 महीने वेस्ट करने हैं या यूटिलाइज करने हैं. 5 months are more than enough to change your entire trajectory of your life. Lock in, diva, lock in. How to placement prep? Not make a video. Societies किसी काम की है क्या? इन द वर्ड ऑफ, मेरे को पता भी नहीं सही सिंगर मैं कोट करने वाली हूँ, मैं नहीं तो मैं नाम नहीं थ्रो करती, बट ना 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 नो. Is college as fun as people say it is? You can make it as much fun as you want. That is literally in your control. How to make friends? लोग बहुत जज करते हैं. I can assure you कि I have had my fair share of thinking कि लोग जज करते हैं, but honestly nobody gives a fuck. किसी के पास इतना टाइम नहीं है किसी और को जज करने का. सब इतने ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस हैं लोग इस दुनिया में कि मैं अगर किसी को कोई ऐसा काम कर रहा है जिसके लिए उसको लग रहा होगा कि उससे कोई जज करेगा, मे बी मैं वो नोटिस भी ना करूँ, मे बी मैं करूँ एंड मेरे लिए इतना वैल्यूएबल ही ना हो कि मैं एक थॉट भी फॉर्म करूँ जजमेंट का उसके लिए, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में ही इतना इन्वॉल्व हूँ. तो कोई एक बहुत ही निहायती फ्री नल्ला निठल्ला बंदा होना चाहिए तुम्हें जज करने के लिए, एंड कोई इतना अगर फ्री और जॉबलेस है तो तुम्हें उसकी जजमेंट से फर्क ही नहीं होना चाहिए. मेक फ्रेंड्स. कोई किसी को जज नहीं कर रहा, कर भी रहा है तो फिर वो ऑटोमेटिकली तुम्हारी फ्रेंडशिप चलेंगी नहीं, क्योंकि जजमेंटल लोगों के साथ कौन फ्रेंड्स होना चाहता है. बट फेक इट टिल यू मेक इट, बी कॉन्फिडेंट. आप इंजीनियरिंग कॉलेज में होकर भी इतने मजे कैसे कर लेते हो? क्योंकि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में आई ही इसीलिए कि मैं मजे कर पाऊँ. यू एंड आई आर नॉट ऑन द सेम पेज ब्रदर. You have it all wrong and twisted. Best thing that keeps you motivated to study, by the way. Insanely overpriced degree, being broke, being useless. I want to be educated. Multiple reasons to want to study. Also, I don't hate studying. That's the thing. कि I know लोगों को ऐसे मौत आती है before studying. मेरे को मौत नहीं आती. मेरे को 90% सब्जेक्ट समझ आ जाते हैं. कोई एक आधा स्टैटिस्टिक्स मेरे सर के ऊपर से जाता है, बस उसके अलावा मेरे को 90% समझ आ जाती हैं इफ़ आई पे माई दिमाग की अटेंशन टू इट. मेरे को मौत नहीं आती पढ़ने में, तो मैं इसलिए पढ़ सकती हूँ आई थिंक डॉक्टर नायसा बनने के लिए. स्टेशनरी स्टफ. आई एम सॉरी टू ब्रेक इट टू यू, बट मैं वो एस्थेटिक स्टेशनरी वाली गर्ली नहीं हूँ, नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई टू बी. मेरे पास इतने अतरंगी किस्म के अजीबोगरीब पेन मेरे को कहीं दिखते हैं तो मैं ले लेती हूँ, बट मेरे पास एस्थेटिक स्टेशनरी नहीं है, क्योंकि बस मेरा वो इंटरेस्ट नहीं है. मेरे पास मेकअप है बहुत अच्छा. आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ 10 रुपये का पेन वर्क्स द सेम. आई हैव हैड माई फेयर शेयर ऑफ, मैं यही स्पेसिफिक पायलट का पेन यूज़ करूँगी इन माई स्कूल. जब मैंने फर्स्ट टाइम इसे पेन से लिखना शुरू करा था 5th-6th क्लास में, बट उसके मतलब स्कूल तक तो रहा ही मेरा कि एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ पेन यूज़ करूँगी, बट कॉलेज में आके आई वाज लाइक इट डज नॉट मैटर. There are literally bigger things to do in life than to hyperfixate on a pen ka brand. So, not a stationery girly. Most embarrassing thing ever happened to you? Comment if you'd like a full story time on this, क्योंकि one thing is coming to my mind. Don't you get bored of eating mess food all the time? I am privileged enough कि मेरे को all the time mess food नहीं खाना पड़ता, क्योंकि I treat food as something फन. कि मेरा आइडिया ऑफ फन, अगर मैं कोई चीज़ प्लान कर रही हूँ, कोई मूवी देखना हो, कहीं कुछ जाना हो, कहीं भी जाना हो, मेरे आइडिया ऑफ फन में खाना ज़रूर होता है आइटनरी में. तो whenever I'm sad, whenever I'm feeling low, whenever I'm unmotivated to do something, तो I ऑर्डर टेक आउट. आई रिमेंबर मेरी फर्स्ट ईयर में इतनी पॉकेट मनी तो होती नहीं थी कि मैं बिल्कुल रोज़ ही बाहर का डिनर कर सकूँ इतना एक्सट्रेविगेंट, बट तब भी मैं बाज नहीं आती थी. मैं तभी बाहर से ही खाती थी, एंड थैंकफुली मेरे दोस्त भी ऐसे ही थे जिनको खाने में इंटरेस्ट था, तो इट ऑल वर्कड आउट परफेक्टली. मेस का खाना कैन बी बोरिंग एट टाइम्स, बट दैट इज़ हाउ यू लर्न हाउ टू मेक मैगी इन अ केटल, एंड फिर वो केटल का बेस तुम जला दो, एंड फिर उसको फॉक से घसीटो, एंड फिर वो पूरा कोटिंग ही घसीट जाए, एंड फिर वो केटल तुम्हें फेंकनी पड़े. थिंग्स मेस का खाना टीचेस यू. व्हाट्स योर ब्रांच? माई ब्रांच इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. कुछ ऐसा डिविजन नहीं है इसमें. इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन,
core electrical engineering. Is wearing small cute clothes like short denim skirts and shorts are okay? Absolutely. But you might be wondering कि फिर आप क्यों जीन्सों में घूम रही हो? Actually इसका स्टोरी टाइम कॉलेज खत्म होने के बाद मैं तो बता रही हूँ. If you don't like my content, if you don't like my guts, एक बारी 2 साल में जब मेरे हाथ में मेरी डिग्री होगी, come back to my channel and just ये सारे स्टोरी टाइम्स मैं कॉलेज के बाद बताऊंगी, उसे सुनना. It's first year hectic. First year is kinda hectic. Now that I think about it, क्योंकि you don't want to feel left out. इतनी सारी first years के लिए activities होती हैं and you feel like joining every club and going to every party and talking to everyone, क्यों hectic हो जाता है. मेरा अब तक का सबसे chill year, कि जिसमें chill in the sense कैसे नहीं, ignorant. Chill in the sense के I am not the target audience for anything was second year. कि मेरे को फर्स्ट ईयर वाली एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट नहीं कोई करवा रहा था, ना मेरे को थर्ड ईयर का प्रेशर था, ना कुछ फोर्थ ईयर का स्ट्रेस था. लाइफ वॉज वे सिंपलर. कि मेरे को लगता है सेकेंड ईयर से पहले मेरी लाइफ सिंपल 7th क्लास में थी. सेम एनर्जी है दोनों दोनों चीज़ों की. फर्स्ट ईयर में क्या क्या ना करें. ज़्यादा नशे, डोंट गेट पोस्टेड ऑन रैंडम पीपल्स स्टोरीज, बैक ना लाएं, मार पिटाई के कलेश में ना पड़ें, and don't date. Rate your college from 1 to 10. 10. Please मेरे को मेरे पसंद का रूम दे दो. What to do if you overshare with the wrong person? Pray कि उन्हें amnesia हो जाए, which is भूलने की बीमारी, या फिर just take it as a lesson कि आगे से नहीं करना. There is nothing that can save you now. Have you been allotted a different room now? I am hoping आप मेरे कॉलेज के स्टूडेंट अफेयर्स के किसी ऑफिसर के बच्चे हो. प्लीज उन्हें आप दरख्वास्त करें कि मेरी वीडियो देखे, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मेरे को मेरे पसंद का रूम दे. मैं रूम टूर भी नहीं बना पा रही, मैं अपना रूम डेकोरेट भी नहीं कर पा रही, मैं अपने सारे सूटकेस भी नहीं खोल पा रही क्योंकि आई जस्ट डोंट वांट टू. माय समर ब्रेक मैंने इतने सारे आइडियाज हो रहे थे कि मैं अपने रूम का पहले से मिरर डेकोरेट करूंगी, फिर बेड्स, फिर वॉल्स, फिर ये फिर वो, एंड आई विल मेक इट अ पार्ट वीडियो. कैसे इतना सारा रूम डेकोर, इतना मजा आएगा, व्लॉग बनाऊंगी. All my अरमानों पे पानी have been thrown. Please pray for me. Everyone comment, I will get my room. Let's manifest. 1 month में college start है. What should I be aware of? What to prep? 1 महीना और? That's crazy. Prep तो कुछ नहीं कर सकते. Just be aware of oversharing and whatever else there is shared in this video. You can't prep enough. बस वार्डरोब प्रेप कर लो अपना ऐसे आउटफिट्स के साथ अच्छे अच्छे. ऐसे नहीं, मतलब ये तो बहुत ही जो सूटकेस में मेरे को मिला खुला हुआ टॉप मैंने पहन लिया क्योंकि मैं अपना सारा सामान भी अनपैक नहीं कर पा रही. बट या लैपटॉप रैक फॉर फर्स्ट ईयर बीटेक सीएसई. आई वाज नेवर इन फर्स्ट ईयर बीटेक सीएसई, तो मैं उसके लिए तो नहीं कर सकती. बट आई हैव अ एचपी विक्टर्स, जो कि एक बारी उसकी पूरी स्क्रीन का ऐसे आउटर प्लास्टिक ऐसे उखड़ गया था. बट थैंकफुली तब मेरे पास इसका इंश्योरेंस था, तो हमने वो ठीक करवा लिया. 2-2.5 हज़ार फिर भी लगे, बट बिना उसके तो बिल्कुल ही लैपटॉप का आधा वो कर देते कॉस्टिंग. एंड जब मेरा लैपटॉप खराब था ये, तब ऑब्वियसली मेरा फ़ोन मेरी बातें सुनता है लाइक एवरीवन एल्सेस, तो ये बस सारी वीडियोस आने लगी ऑफ एवरीवन हैविंग द सेम एग्जैक्ट इशू विद देयर एचपी विक्टर्स. तो अब मैं ये बातें करके अपनी एचपी की ब्रांड को लैब तो खराब कर ही रही हूँ. तो प्लास्टिक बॉडी वाला एचपी विक्टर्स जो है मेरे पास, ब्लू कलर वाला, तो ये इसमें थोड़ा सा बॉडी का इशू है. तो उसके अलावा डू योर रिसर्च. लोगों की बकवास का विदाउट हेजिटेशन जवाब कैसे दें. आई विश आई वाज समवन जिसको मौके पे कमबैक्स आते. मतलब मेरे को 20% ऑफ द टाइम मौके पे कमबैक्स आते हैं, वरना मेरे को अगले दिन नहाते हुए आते हैं, या फिर सपने में या फिर नींद में. बट अगर यू डोंट हैव एनी कमबैक एंड यू feel like you are being humiliated or someone is trying to humiliate you, just leave. The best response that you can give to a negative situation is leaving it, is your absence. लोग कह सकते हैं इसको जवाब नहीं देना आता तो ये ऐसी बकवास कर रही है, which might be partially true, but you will never know because I will leave. Leave it. But if you constantly think that your college is bad, I was in the same exact place for a whole fucking year. I thought my college was a bad place and I didn't want to be here and I wanted to be somewhere else. And I thought that I didn't belong here, but everything works out fine. Everything works out for a reason. In case it doesn't, you will figure out something better. But if there is a feeling inside you that tells you कि you're not meant to be in this place, then look for it, explore it. देखो कि तुम क्या उसे fix करने के लिए कर सकते हो. I'm not saying accept करो, जो मिला है अच्छे के लिए होता है most of the times. But if you feel like you can change it, re-exam देके या फिर partial drop या whatever लेके, do it. You
have all the options in the world that you can create for yourself. How much study is required in BTech CSC? Is it easy or tough? I think it really depends on what you like and what you think is difficult. Because I've seen people struggle in subjects of computers in learning a new coding language, and I've seen people write it like it's their mother tongue. So it really depends कि मतलब क्या है. If you are insanely smart और तुम बहुत जल्दी से grasp कर लेते हो चीज़ों को, तो फिर तुम कुछ भी कर सकते हो. But if you're not, then you'll have to grind. And if you're not smart and you don't want to grind, then how do you deal with haters? I don't. I just smile and walk away. You don't have to reply to every single person जो तुम्हारे बारे में बकवास कर रहा है. You can just leave like I suggested. Argument करने से, you know that quote that says कि if you play with a pig, तो उसको तो मजा आएगा कीचड़ में, but you'll just get dirty. Haters gonna hate. Move on. थोड़ा सा रो लो अगर ज्यादा दिल पे लगे तो. But next day you'll rise a new person who is not affected by that shit anymore. Find shit, find shit, find shit. How do you manage everything like content, exams, assignments, and going out? I love most of 50% of the things that you mentioned here, and 50% of the things are my necessity. Mere basis of me to do the 50% of the other things that I like doing. So I have to manage it. And there are a lot of things that I lack in sometimes, but I try to power through it. इतना सामान कैसे हो गया घर से आते हुए? इतना क्या ले आए? If you haven't watched 4th year college move-in vlog, do it. But तुमने पिछले साल का मूव इन ब्लॉग नहीं देखा क्या? वो भी देखो, उसमें भी था इतना सारा सामान. नॉर्मल बेसिक नेसेसिटी का सामान है, मैं कुछ भी आलतू फालतू नहीं लेके आई हूँ. मे बी थोड़ा सा सामान है आलतू फालतू जो कि मेरे काम का नहीं है और मैं बस ले आई ऐसे इमोशनल होल्डर बन के. बट उसके अलावा इट्स ऑल नेसेसिटीज. हाउ कैन आई लिव आउट ऑफ अ सूटकेस व्हेन आई एम नॉट इवन गोइंग more than 250 kilometers away from my home? अगर मैं ऐसे बाय एयर ट्रैवल करके कहीं जा रही होती तो मैं थोड़ा सा डाउन साइज करती. बट अभी मैं सब कुछ ही घर से ले आती हूँ. मिरर, डस्टबिन जो भी मेरे पड़े हुए हैं फर्स्ट ईयर से, मैं सब उठा के ले आती हूँ. वाई शुड आई बाय न्यू थिंग्स एवरी सिंगल ईयर जब मैं उसको बाय रोड ही आसानी से ले जा सकती हूँ. इफ आई एम ट्रैवलिंग बाय एयर देन इट मेक्स सेंस वहां जाके खरीदना. तो मैं सब ले आती हूँ. हैंगर कपड़ों के. मेरा एक मेरा पूरा बड़ा ऊपर रखा हुआ है कार्डबोर्ड बॉक्स भर के मेरे बच्चे आए थे. इज बीटेक वेरी डिफिकल्ट टू डू? नो यार. What is your goal in BTech? Getting A's in every subject. So yes, there are multiple very difficult, very 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 difficult subjects. But मतलब overall, if you like study even a week or 2 weeks before your exam, जो कि मोस्टली लोग नहीं कर रहे होंगे तुम्हारी डिग्री में, तो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. एक रात पहले पढ़ने वालों के लिए भी नहीं है डिफिकल्ट ऐसे कराएंगे इमोजी वाला. तो 2 हफ्ते पहले पढ़ लोगे, तुम्हें ऐसे डर है या फिर डिफिकल्ट लग भी रही है तो sorted. Studies should be the least of your problems when you're in college. And I'm not saying it's a personal relationship, friendship वाली problems होनी चाहिए, but it should be about your next move in your career, be it an internship, be it starting a new project, be it working on something that you've been wanting to do for a long time. So yeah, it's not that difficult. गाली मेरे को अब कोई दे कमेंट में तो फिर उसकी सुन लो या मेरी सुन लो. But I have a mic. Why engineering? Because I thought it would make me insanely rich. Either by cracking a good package और क्योंकि सारे ऐसे फेमस लोग इंजीनियर्स होते हैं तो मैं इंजीनियरिंग करके कुछ तो कर ही लूंगी क्रेजी. प्लीज मीटअप प्लान कर लो. 100K पे करेंगे. आपने कॉलेज एंटर करने के बाद रैगिंग फेस करी? मैंने पर्सनली नहीं करी. मेरे को याद है मेरे कॉलेज एंटर करने पर मैंने ऐसे एंटी रैगिंग एफिडेविट साइन करवाया था सारे स्टूडेंट्स से और पेरेंट्स से. एंड मैंने पर्सनली नहीं करी. मैंने मतलब सुना भी नहीं यहाँ पे किसी ने करी हो. आई थिंक इट रियली डिपेंड्स ऑन व्हाट योर कॉलेज इज एंड व्हाट योर कॉलेज का कल्चर इज ऑन दिस टॉपिक, बट नॉट एक्सपीरियंस्ड पर्सनली. क्या कॉलेज में फ्रेंड्स बनाना नेसेसरी है सर्वाइव करने के लिए? क्योंकि आई एम इन माय सेकंड ईयर एंड आई हैव नो फ्रेंड्स. आई was in my second year when I had no friends क्योंकि I had just cut off with all my first year friends and I had 0 friends and it was scary. And I won't say it's necessary to survive, but it makes college a lot more bearable and fun and interesting. I was someone जिसने second year में from scratch फिर से friends बनाए, तो it is doable. मैं कोई second year में मेरे अंदर वो first year वाली चुल नहीं थी सब socialize करने की, but फिर भी you can do it. Make friends, put yourself out there and trust me, first year के बाद बहुत सारे लोगों के अपने first year के friends से breakups होते हैं. Swoop someone in. How did you adapt to your college life moving away from your family? I was 8 years old when I thought I would be moving far from home for my graduation. So 10 साल तो मेरा mentally preparation में लग गए उस बात को, तो मेरे लिए इतना तो difficult नहीं था.
but it was a little difficult living away. अपने खुद से कपड़े धोना, बर्तन धोना, and not just the luxuries, just say eating dinner with your family, कुछ भी random ass चीजें, तो it hits you on a random moment, but it's the cost of the life you want to build for yourself, and it's fun if you मतलब कोई perspective अगर उसको दो, तो you can just take it as a new experience and go home whenever you feel like it. It's your home. Book that ticket. Tell some tea about college backstabbing and bitching. 2 साल बाद convocation, degree, story times ही story times. सारे Instagram stories वाले वो चले गए, questions over हो गए, and now we have YouTube वाले questions. First one is drop some interesting tea from college. Like I said, give me 2 years. How are you managing building skills with content creation as an engineering student? Time management करना बहुत ज़्यादा hard है. मेरे weekends used to be the most happening time of my week कि पूरे time बाहर ही घूमती रहती थी. But अब my weekends are the time where I'm grinding the most क्योंकि I have to catch up with my studies during the week as well, classes and everything. तो weekends में मेरे को थोड़ा extra, if I am putting effort into something else, so I have to look into it. So these are the sacrifices कि I don't party, I don't go out, I do that a lot. But उसके लिए मेरे को time make करना पड़ता है कि if I have a plan later in the evening, तो I have to work, I have to wake up early, I have to make time for my work to be, for it to be completed. क्योंकि I am someone जिसको इतना मज़ा नहीं आ सकता अगर उसका थोड़ा सा ऐसे काम का stress pending है. So you have to make time. Sometimes when I'm scrolling on my phone, I feel like I could have been doing something productive even on my phone or my laptop. So I just switched to that, and it is really hard कि मैं अगर अपना दिन का 2 घंटा वेस्ट करती हूँ अपने फ़ोन पे या फ़ोन पे ही मैं कहूँगी कि रील्स देखने में, तो that is after I force myself to be productive the rest of the time that I'm awake for me to be able to have fun the way I want and build skills. Which was the question. Should we join college clubs? Guess करो. प्राइवेट कॉलेज में कैसे करना रहेगा? प्राइवेट कॉलेज में नॉर्मल कॉलेज की तरह ही करना पड़ेगा, बस अटेंडेंस क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा एंड बस ओवरली एक्सपेंसिव होगा. आई हैव नेवर फेस्ड रैगिंग, व्हिच वाज अ क्वेश्चन. Can you give any tips for first day of college? Did you get anxious when you moved to college? Yes, absolutely I did. And tips are just faking your confidence till you actually are confident. You keep talking to people, joining any societies or clubs which you're planning to do or not, or pursuing any hobby or an internship, or just raising your hand in class to ask questions or introduce yourself requires confidence. The main skill set before coding कुछ भी should be being confident with yourself and speaking with confidence and not oversharing. Speaking. Do you actually meet good friends during your college, or is the whole college experience worth it? Yes, if you can afford college, if you have the privilege to go to a college, not necessarily a very overpriced one, but if you can go to college, you should absolutely join college. If people say कि अब डिग्री की वैल्यू नहीं है, अब skills से काम होता है, तो that is true, but you can learn those skills while also having an official degree and living a part of your life which is something that will be with you for the rest of your life, which all obviously comes down to if you can afford it, or if it's something that lies in the path of the goal that you want with your life. And that is all. Thank you so much for all your questions. I hope I answered all of them. कुछ ऐसे weird ass questions थे जो कि अगर तुम्हारा question नहीं answered तो maybe it was repetitive and I already answered in another question, and if it somehow slipped, let me know in the comments and I'll answer it there. And if it was not the case तो तुमने कुछ creepy ही लिखा होगा, तो check yourself कि तुम इंटरनेट पे क्या करते हो. And let me know how was this Q&A and if I answered all your questions and if मेरा ज्ञान made sense to you. मेरा 3 साल का इकट्ठा करा हुआ ज्ञान. If you watched till now, comment how did you find these advices, if this was something that you think could help you or would help you, and like, share, subscribe, masti, and I'll see you tomorrow.